Hello students, hope you all are doing very good. We have already conducted two classes of GST. The first class I have explained how GST came into implementation in India, and thereafter which all taxes were there in the central level and the state level, that I have discussed. Okay. Then I have discussed the journal entries, different journal entries which are related to GST. Then I have discussed what is input GST, what is output GST, what is IGST, all different three different types of GST charges that is there. And thereafter I have explained you the different rates of GST. These all topics I have already covered in GST in my last two classes. If you want to go through those topics, then you can click to my previous classes of GST. There you will get. Okay. Now this was the last slide in my previous class. GST rate structure. So essential item including food is 0%, common uses item is 5%, standard rate is 12%, maximum goods and all services standard rate is 18%, and luxury item and tobacco is 28%. Now today we will deal with a problem which I have selected from DK Goel book. Okay, illustration number is 8, illustration 8, DK Goel book. From there I have selected a problem, and why I have selected it, the main reason of selection is that problem consists of CGST, SGST and as well as IGST. So accordingly we are going to charge GST depending upon the purchaser or the seller is from which place. Okay, and if it is within the state, then CGST and SGST will be charged, and if it is outside the state, then IGST will be charged. And finally the most important part of GST question is the settlement, the final settlement which is to be done at the end of the question. Okay, so let's start then. Okay. Pass entries in the book of Deepak of Gujarat for the following transactions. Okay. Pass entries in the book of Deepak of Gujarat of the following transaction. So this is important. We are solving a question of a business which is from state Gujarat. The name of the state is Gujarat. Now the thing is that anything within the state will be CGST and SGST will be charged. Anything outside the state, IGST will be charged. Like the first one, purchase goods from Anupriya of Gujarat at 2,50,000. So purchase account will be debited. Purchase account will be debited. Input CGST account will be debited. Input SGST account debit to Anupriya account. So the goods is purchased for 2,50,000. So you can write here 2,50,000, and you have to calculate 9% of 2,50,000. 2,50,000 into 9 by 100 is 22,500. So you can write here 22,500, 22,500, 2,50,000, 22,500, 22,500. All total 22 plus 44, 45,000. So 2,95,000. This is it. This is the journal entry for the statement. What is the statement? Purchase goods from Anupriya of Gujarat for rupees 2,50,000. So normally it is purchase account debited to Anupriya, but then since there is a GST factor, so for purchase it is input GST. Now since it is within the Gujarat, here also see Gujarat,
the business is from Gujarat and the purchase happened from Gujarat. So there will be charge of input CGST and input SGST. Then you write the narration. Narration will be this only: purchase goods from Anupriya of Gujarat for rupees this much. So this is the first journal entry. Now, second journal entry will be for this item, that is for this statement, that is purchase goods from Rana store of Rajasthan for 3 lakh. So now this is, what is important here is Rajasthan, and Rajasthan is a different state. Gujarat is a different state. Now our business is from Gujarat. Business is from Gujarat. So when we buy from Rajasthan, there will be IGST. See here, IGST is 12%, right? So in that case, your journal entry will be purchase account debit, IGST account debit to the name of the person is Rana Rathore, to Rana Rathore. The value of purchase is 3 lakh. Okay, and IGST charge is here given, see in the green color, 12%. So 3 lakh 12 3 are 36. 12% of 3 lakh 36,000. So this will be 3 lakh 36,000. This is it. So you can write the narration here. What is the narration? Purchase goods from Rana Rathore of Rajasthan. Okay. So like that you can write here the narration. Okay. So I'm not writing the narration because narration can be copied from the statement only. So I am avoiding it. Doesn't mean that you will not do. Definitely you have to do the narration also. So this is it. Now two entries are being done. Okay, 2 journal entries. Now the third one is February 10. So sold goods. See, I didn't make the journal entry ka format just to, if I write the question somewhere and make the journal entry somewhere, then every time I have to go to the question and refer to journal entry, right? So this is for my teaching convenience. I have written the statement like this. I have extracted it from the question. The questions I have written in this way so that in between I can do the journal entry. But when you will be doing in your copy, make a full format of journal entry. Okay, एक पूरा format बना लेना journal entry का और उस पे आपको करना है. ठीक है, तो ये मैं कन्वीनियंस के लिए आपको समझने में सुविधा हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर कहीं और रहेगा, अचानक से आपको क्वेश्चन पढ़ने का मन किया तो बोर्ड में नहीं दिखेगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं सामने सामने में क्वेश्चन को कर दिया. तो सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2 lakh. Okay, this is a sales entry. So this is Gujarat. Gujarat means CGST and SGST. Okay, Gujarat will be CGST and SGST because the business is from Gujarat and we are selling it to Gujarat only. So in that case, here you can write Gurdeep Sidhu CGST account to output SGST account to sales account. Now we have sold goods of rupees 2 lakhs. तो हम लोग यहाँ पे आप पहले यहाँ पे 2 lakhs लिखना है. ओके, इसके बाद हमारा जो CGST है 9% एंड SGST 9%, 2 lakhs का 9% इज 18,000. So 18,000. So 18,000 plus 18,000 is 36,000 plus 2 lakh is 2,36,000. Okay, this is the way you have to do the journal entry of GST. Next is paid railway freight rupees 15,000. So this will be freight account debit. Okay,
Next is CG. What kind of CGST here applicable? Here, 1 minute. Freight account debit, then input CGST account debit, input SGST account debit to cash account. Now freight is of 15,000, okay, and 9% of 15,000 is 1350. So this will be 17,700. Place is not written, so you will take that benefit that this is locally purchased. Definitely this is locally only purchased. This type of things are available everywhere. So you can write office equipment account debited, input CGST account debit, input SGST account debit to, now this is bought in credit. Credit means to Dell Limited. Now your office equipment is of 80,000. The printer cost 80,000 and CGST is 6%. 80,000 6% is 8 6 48. So 4,800. So 4489. So 89,600. 89,600. Okay. So till now we have done how many journal entries? This is the first journal entry regarding purchase from Gujarat. So, and second is from Rajasthan. So IGST. Third is from Gujarat. So CGST and SGST. Fourth is all freight and fifth is office equipment. स्टेट के अंदर में हुआ तो CGST एंड SGST लगेगा. स्टेट से बाहर कोई और स्टेट से इवेंट हुआ परचेज या सेल का तो उस पे IGST लगेगा. तो यहाँ पे जैसे ये यूपी का है, सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी गुड्स ऑफ 4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. यानी कि गंगाराम को हमने सेल किया है, गंगाराम जो यूपी में रहता है उनको हमने सेल किया है, ठीक है, 4,20,000 का गुड्स और बदले में हमें चेक मिला है, चेक से पेमेंट मिला है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. और टू आउटपुट IGST अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो गुजरात का है. ओके, तो गुजरात का अगर बिजनेस है तो यूपी से हम अगर डील करते हैं तो वो IGST लगेगा. तो 18% है, 4,20,000 का 18% होता है 75,600. तो दोनों को जोड़ने से 4,95,600, राइट. इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज 10,000 बाय चेक. तो आपने ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000 और उस पे इनपुट CGST लगेगा और इनपुट SGST लगेगा. ओके, तो 6% है तो 10,000 का 6% 600. ओके, तो सबको ऐड करने से टू बैंक अकाउंट 11,200. क्लियर. तो सिंपल से जर्नल एंट्रीज है, बस वो थोड़ा सा CGST SGST इनपुट है या आउटपुट है ये देखना है. जिस साइड में एक्सपेंस है उस साइड में जाएगा तो इनपुट आएगा, जिस साइड में इनकम है उस साइड में अगर गया तो आउटपुट हो जाएगा. ठीक है ना. डेबिट में इनपुट होता है, क्रेडिट में आउटपुट होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो. सेल के साथ आउटपुट होता है, परचेस के साथ इनपुट होता है. कोई भी एक्सपेंसेस हुआ तो इनपुट होगा, जैसे इंटरनेट चार्जेस एक्सपेंस है. ठीक है ना. इस तरह से आप लर्न कर सकते हो.
इसके बाद फाइनल एंट्री करना है। ये जो फाइनल एंट्री है ना, इसमें 3 एंट्री है। ओके, दिस इज द फाइनल एंट्री, 3 एंट्रीज आर देयर। इसमें करना क्या है, आपका जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितने तरह के जीएसटीज है उसको अलग से ग्रुपिंग करो। तो ग्रुपिंग में हेडिंग जो आएगा, हेडिंग ऐसा आएगा, हेडिंग ऐसा आएगा, ये इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 6 हेडिंग है, 6 ही होता है जीएसटी का, इनपुट और आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ऑल टोटल 6 ही होता है। आपको क्वेश्चन से ढूंढ ढूंढ के लिखना है कि कितने सारे अमाउंट है। जैसे आईजीएसटी का एक ही अमाउंट है 36,000 और इनपुट में, और आउटपुट में 75,600 है। आपका जर्नल एंट्री में जो किया है वहां पे आप अब देखने से आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं एक बार। सी हियर, ये रहा इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी 36,000। ठीक इसी तरह से आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ये रहा आउटपुट आईजीएसटी, ओके, 75,600। तो उसी तरह से सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट में 4 अमाउंट है। अगर आप जर्नल एंट्री चेक करोगे तो 4 जर्नल एंट्री में आपको मिलेगा ये सारे अमाउंट। और ठीक उसी तरह से आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी में एक ही अमाउंट है, 18,000। ओके, कोई एक जर्नल एंट्री है जिसमें आउटपुट यूज हुआ है। अब इन सबको मिला के एक सीरीज ऑफ जर्नल एंट्री करना है, सो दैट वी कैन पे टू द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली कितना पैसा गवर्नमेंट को पे करना है या गवर्नमेंट से क्लेम करना है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो आप पे करोगे या तो आप क्लेम करोगे। इस क्वेश्चन में याद रखना, ये ऊपर की तरफ एरो का मतलब है कि आपने पेमेंट कर दिया है, ये परचेज रिलेटेड है। आउटपुट, इनपुट का मतलब परचेज रिलेटेड, सेल का मतलब यानी इनकम रिलेटेड है ना। तो आप जब इनपुट आईजीएसटी देख रहे हो, मतलब आपने परचेज किया है और उस वक्त आपके पास से जीएसटी का पैसा पेमेंट हो गया, मतलब आपके पॉकेट से वो निकल गया पैसा। और ये जो सेल है, सेल में क्या होता है कि जीएसटी का पैसा सेल अमाउंट के साथ हमारे पास आ जाता है। तो गवर्नमेंट का ये डायरेक्शन है कि जितना आपने पेमेंट किया है उतना आप, जितना कलेक्शन किया है जीएसटी से, वहां से आप उतना काट के अपने पास रख लो। तो यहाँ पे 36,000 आपने पेमेंट किया है, आपने 75,600 आपको मिला है सेल के वजह से। तो दोनों को माइनस करने से 39,600 जो एक्स्ट्रा पैसा है वो है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को ये 36,000 75,600 से अपने पास रख देना है। तो उसके लिए ये वाला, ये पहला जर्नल एंट्री क्या है, आउटपुट आईजीएसटी। देखो, आउटपुट कभी क्रेडिट डेबिट नहीं होता है, इनपुट कभी क्रेडिट नहीं होता है, याद रखना। इनपुट परचेज के साथ है, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो इनपुट भी डेबिट होता है। आउटपुट सेल के साथ है तो सेल क्रेडिट होता है, तो आउटपुट भी सेल क्रेडिट होता है। लेकिन अब हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट मतलब जो डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट हो गया उसे डेबिट करना है। एडजस्टमेंट एंट्री उल्टा होता है। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो पैसा हमारे पास है 75,600, यहां से हम अपने जो पेमेंट किया है 36,000 वो हम रख लेंगे। तो रखने का ये एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है। अब बचा कितना, 39,600। इसको थोड़ा याद रखना, 39,600 अभी पॉकेट में है। अगर कुछ नहीं होता है तो इस पैसे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो हिसाब है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का देख लेते हैं। तो ये इनपुट का मतलब है कि हमने पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट किया है, 29,250, 29,250। और आउटपुट का मतलब है कि हमें पैसा मिला है सेल करके, कितना मिला है, 18,000, 18,000। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो मिला है उससे जितना पेमेंट किया है उसको रख लो। लेकिन हमको तो कम मिला है, 18,000 मिला है, और हमने तो ज्यादा पे किया है 29,250। तो पहले हम ये 18,000 तो गवर्नमेंट को नहीं देंगे,
क्यों नहीं देंगे? बिकॉज हमने पेमेंट कर दिया है ज्यादा जीएसटी के नाम पे और हमें मिला है जीएसटी कम, तो हम ये पैसा रख लेंगे। रखने का क्या एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री उल्टा, यानी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का जो 18,000 है ये हम रख रहे हैं और इसको एडजस्ट कर रहे हैं इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी में 18,000। लेकिन इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी यहाँ पे 18,000 नहीं है, यहाँ पे है 29,250, ज्यादा है, मतलब हमने पेमेंट ज्यादा कर दिया है। लेकिन अब कोई उपाय भी तो नहीं है, हमको मिला है 18,000, तो 18,000 से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 29,250 है, 29,250 अगर इससे मैं 18,000 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? 11,250, राइट? 11,250 इज द अमाउंट जो हमको नहीं मिला। 11,250 नहीं मिला। कहां से नहीं मिला? इनपुट सीजीएसटी से। उसी तरह से इनपुट एसजीएसटी का 11,250 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने पेमेंट किया 29,250 ऑल टोटल और हमें सेल करके आया 18,000। तो 18,000 तो जो आया वो हम रख लिए क्योंकि हमने ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है जीएसटी में। तो भी 11,250 रिकवर करना है और रिकवर करने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? आईजीएसटी में हमारा अभी भी 39,600 है, तो 39,600 है, तो 11,250 दो बार प्लस करो तो ये हो जाएगा 22,500। तो 22,500 हम लोग यहां से रख लेंगे क्योंकि ये पैसा अभी भी है आईजीएसटी का हमारे पास। तो क्या करना है? ये जो 39,600 है, यहां से हम इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी में 11,250 हम रख लेंगे। तो रख लेने के बाद जो बचेगा 39,600 से माइनस करो इन दोनों को। 39,600 माइनस ये दोनों को प्लस करने से 22,500 होता है ना। सो माइनस करो, कितना आ रहा है? 17,100। ओके, सी टू बैंक अकाउंट 17,100, मतलब ये पैसा हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम ये पैसा पे कर रहे हैं। तो ये लास्ट वाला ये जो एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी क्वेश्चन करना है आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? और भी एग्जांपल्स अगर आपको देना है और समझ में अच्छी तरह से आने के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल डेफिनेटली डील विद मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, जिससे आप लोगों का जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये लास्ट वाला जो है पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट कितना मेड किया? टू बैंक अकाउंट 17,100 गवर्नमेंट को हमने पे कर दिया। टोटल जीएसटी कलेक्शन एंड जीएसटी पेड को पहले एडजस्ट करना है। याद रखना, इनपुट मतलब हमने पे किया है, आउटपुट मतलब हमने कलेक्ट किया है। तो जितना कलेक्ट किया है वहां से जितना पे किया है वो रख लेंगे, बाकी का जो बचा पैसा वो गवर्नमेंट को देना है। लेकिन देने से पहले आपको सीजीएसटी भी देख लेना है, एसजीएसटी भी देख लेना है, ठीक है? सो दिस वाज योर जीएसटी क्लास। टोटल आई हैव गिवन यू 3 classes. 2 classes were mainly on theoretical basis, the concept of GST, and the last class was to deal with one practical problem. Hope you have liked it. If you like it, please click the like button. That motivates me. उससे मुझे बहुत मोटिवेशन आएगा, मैं और अच्छा काम करने के बारे में सोचूंगा। कोई इम्प्रूवमेंट करना है किसी भी तरह से आप कमेंट्स लिख के आप हमें बोल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल लॉट। आपका दिन शुभमय जाए। बाय बाय।